Good morning, students. As I have already mentioned that today we are going to study about William Shakespeare. Okay, and our prime focus is going to be on sonnet because it is mentioned in the syllabus of Kumail University. But yes, we always do, we are going to study about the life of William Shakespeare and as well as the age to which William Shakespeare belonged. Okay, and William Shakespeare, when we study about him, Shakespeare is very famous for his plays. Okay, he has written tragedy, he has written comedy, he has written historical plays. Okay, so he is very famous writer. You can just say this that yes, he is world's greatest playwright. Okay, and he the writer of English language. Okay, often William Shakespeare, he has been conferred with the honor of being called England's national poet. Okay, he is the kind of author who has written 38 plays and 154 sonnets. Okay, and his work, it is much more appreciated by the world after his lifetime. Okay, and yes, Shakespeare's work, it has been translated into every major language of the world and been performed extensively by all the artists or the theaters of the world. Okay, so he is such a kind of poet, such a kind of playwright. Okay, um, so Ben Jonson has very famously said about him that he belongs not to a age but of all the time. Okay, so when we talk about William Shakespeare, so William Shakespeare, he basically belongs to the Elizabethan age. Okay, so it's very necessary that we should know what Elizabethan age was and what were the various social and political and historical changes that were introduced to the Elizabethan age. So Elizabethan age is basically named after the reign of the last Tudor monarch of England, that was Queen Elizabeth I, who ruled from 1558 to 1603. Okay, the age of Elizabeth is basically 1550 to 1625, but when we see the ruling of Queen Elizabeth I, it is from 1558 to 1603. Okay, so, and she died in 1603, and after that King James I, okay, he has ascended the throne of England. Okay, so the period of James I reign, which is from 1603 to 1625, it is sometimes taken as a different period which is called Jacobin period. Okay, so Elizabeth I's 45 years of reign, it is generally considered to be one of the most glorious and golden period of English history. ओके, अब इसकी जो एलिजाबेथ की जो एज है या फिर उसका जो रेन का पीरियड है यानी उसके रूल का जो पीरियड है, व्हाई इट इज़ दैट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट. हम एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पे हम देखते हैं कि देयर इज़ ए सडन राइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंग्लैंड. ओके, और ये जो है रिफ्लेक्ट कैसे होता है, वी कैन सी दैट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द राइटिंग्स or the literary or dramatic works that were produced in English language. See, age of Elizabethan के पहले का जो एक एज था या फिर जो वो पीरियड था, ओके, जो नेशनलिज्म की शुरुआत थी हम एज ऑफ चौसर से ही देखते आ रहे हैं. ओके, Chaucer was a kind of writer who has established the spirit of nationalism in people of England. Okay, Norman period में with the dominance of French, since French or the Norman dialect was very prominent at that time,
इंग्लिश जो थी एक तरीके से लैंग्वेज जो थी वो छुप गई थी या दब गई थी, एंड वट एवर वॉज बिन रिटन एट दैट टाइम इट वॉज रिटन इन फ्रेंच और लैटिन. Alright, so Chaucer के period में we have seen this thing that he started writing in English. Along with him there were Grover and Langland. Okay, so there were some writers who started writing in English, and then उसके बाद हम death of Chaucer के बाद हम देखते हैं कि there was a big barren period. Okay, age of revival जो था, various kind of yes, the barren period. See, 1400 में after the death of Chaucer, the year 1400 it just bring us to the end of an era. Okay, and then by that time England has already passed into a period which is called later Middle Ages, जिसको हम period of disturbance भी एक तरीके से कह सकते हैं, because इस time पे there were some famous rebellions, famous wars. One of the example is War of Roses, which happened in 1455 and 82-85. Okay, so this was the war. This is the civil war between two royal families, York and Lancasters. Okay, so this was the thing. So इससे क्या हुआ था? There was a kind of social dislocation in England. ओके और इस डिसलोकेशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ा था कि जो 15th सेंचुरी थी ये एक पीरियड बन गया था, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन इंग्लैंड. ओके, इस जो ये टर्बुलेंस था ये हुआ था, तो जो लिटरेचर था इस टाइम का इट वाज नॉट वेरी क्रिएटिव. ओके, नॉट वेरी क्रिएटिव इनफ, और जो लिटरेरी सीन था इट वाज रिलेटिवली बैरन. ओके, कुछ लेकिन येस देयर वर सम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, चाहे हम लिटरेरी या हिस्टोरिकल तरीके से देखें तो देयर वर सम एक्टिविटीज़ दैट हैव ब्रॉट चेंजेस इन ब्रिटेन. ओके, मिडल एजेस में हम क्या देखते हैं? द पीरियड बिटवीन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द वेस्ट इन द रेनेसां, ये बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल पीरियड इस टाइम के लिए था. और जब हम सेकेंड लेटर हाफ ऑफ 15th सेंचुरी देखते हैं तो देयर वर टू सिग्निफिकेंट इवेंट दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड. सबसे पहले क्या था? 1476 में देखते हैं जब विलियम कैक्सटन ने ही एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिंस्टर. ओके, उससे क्या हुआ? देयर वाज द मास प्रोडक्शन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ बुक्स. ओके, एंड यस इट हैज़ जस्ट ओपन द विंडो टू द वर्ल्ड फॉर द जनरल रीडर्स. जितने भी रीडर्स हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश हो गया था, इससे क्या हुआ था? जो बुक्स थी ओके रीडर्स के लिए ओपन हो गई थी. कैक्सटन ने बहुत सारी किताबें थी जो पब्लिश करी थी, उसमें चौसर की कैंटरबरी टेल्स भी थी, हाउस ऑफ फेम भी था, थॉमस मैरोले की मॉर्ट दी ऑथर थी. इस तरीके की जो बुक्स थी ये रीडर्स के लिए ओपन करनी थी. देन सेकंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इस टाइम का हम क्या देखते हैं कि हेनरी 7th जो था हिज एसेशन टू द थ्रोन. ओके, ये कौन था? हाउस ऑफ ट्यूडर का पहला मोनार्च था. ओके, सो वी विल नॉट गो इनटू इट कि कौन यहाँ पे मोनार्च था कौन नहीं था. द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वेरी noteworthy that was these three movements. The first movement was humanism. Okay, humanism basically किस चीज़ पे फोकस करता है? It is a ism, a kind of movement. Okay, a principle जो फोकस करता है ह्यूमैनिटी पे, ह्यूमन एज एन इंडिविजुअल पे वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं. सो इट रेफर्स टू अ मॉडर्न मूवमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिपेंडेंस ऑन सुपर नेचुरल रिलीजियस बिलीव्स. गेटिंग इट? ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ मिडिल एजेस. ओके, सो इस समय पे जो ये मॉडर्न ह्यूमैनिज्म, लिबरल ह्यूमैनिज्म का जो थ्योरीज है जो 1920s में जाके हम देखने को मिलती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे. ये मिडिल एजेस का टाइम है. गेटिंग इट? ओके, तो ह्यूमैनिज्म जो था इसका मूवमेंट का जो ओरिजिन है इटली में हुआ था 14th सेंचुरी में. ह्यूमनिस्ट कौन थे? दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल जो लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर ग्रीक एंड लैटिन के स्टूडेंट्स थे. दे यूज टू स्टडी दीज ग्रेट पोएट्स एंड ड्रामेटिक्स. ओके, रेट्रिकियंस एंड हिस्टोरियंस को ये पढ़ा करते थे. और फिर हम क्या देखते हैं? 1453. ओके, 1453 जो था एक बहुत ही
आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इट जस्ट रीच दिस मोमेंट, इट जस्ट रीच इट्स ग्लोरी। क्योंकि हम क्या देखते हैं 1453 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, व्हेन द माइटी एम्पायर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इट कोलैप्स्ड। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? इट वाज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट बाइजेंटाइन। ओके, ये जो कैपिटल थी, इट वाज द कैपिटल ऑफ इट वाज द फेमस कैपिटल जहाँ पे स्टडीज़ की जाती थी, फिलोसफर्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स एंड ऑल दीज पीपल दे वर देयर। लेकिन जब 1453 में देयर वाज द collapse of this mighty empire, तो there were the rediscovery of all these lost documents। क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जितने भी एंशंट राइटर्स थे, एंशंट हिस्टोरियंस थे, ऑल दीज पीपल ये क्या करते हैं, दे फ्लेड टूवर्ड्स यूरोपियन एरियाज़। ठीक है, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के वेरियस कंट्रीज़ में जाके सेटल होने की कोशिश करते हैं। एंड इससे क्या होता है, एक नया ही तरीके का मूवमेंट जो है स्टैब्लिश होता है, द मूवमेंट विच वी कॉल्ड रेनेसां। ओके, ये जो मूवमेंट है ये स्टैब्लिश होता है। अब देखो इंग्लैंड में जो इसका असर है वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। रेनेसां जो है एज अ मूवमेंट इट स्टार्टेड इन 1485 इन इंग्लैंड, लेकिन रेनेसां एज अ मूवमेंट इट वाज ऑलरेडी बिगन इन 1453 विद द कोलैप्स ऑफ this ancient capital। okay, so this was the thing। now अब हम एलिज़ाबेथन एज की बात करते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे जिन्होंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इस एज को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया था, लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया था। ये जो है जो थोड़े से हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ था विद द असैसिनेशन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन, जितनी भी डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल ट्रबल्स थे, वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, एंड देयर वाज अ रिलीजियस एंड सोशल स्टेबिलिटी ब्रॉट अबाउट द नेशनल प्रॉस्पेरिटी। वी कॉल इट अ गोल्डन एरा, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस सिर्फ लिटरेचर या फिर एज शी वॉज ए द क्वीन एलिज़ाबेथ, शी वॉज the kind of person she was a kind of patron of arts, and her action and image in the court atmosphere, it just led to a flourishing of art and literature in this period। okay, so हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जब क्वीन एलिज़ाबेथ वन थ्रोन में आती है तो ऑल काइंड ऑफ डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड रिलीजियस और पॉलिटिकल ट्रबल्स दे जस्ट कम टू एन एंड। और इससे क्या होता है, एक तरीके की स्टेबिलिटी जो होती है स्टेट में इस्टेब्लिश होती है, जो नेशनल प्रॉस्पेरिटी की ओर मुड़ती है। ओके, और हम रिलीजियस रिफॉर्मेशन देखते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म की बात होने लगी। ठीक है, अब देखो हमेशा से इंग्लैंड में एक तरीके की लड़ाई होती रही है, दैट एंगलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच। तो क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने क्या करा, शी इंट्रोड्यूस एंगलिकनिज्म टू सेटल द रिलीजियस प्रॉब्लम। ओके, इसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है। ओके, दैट वी विल नॉट स्टडी, वी विल नॉट वी विल स्टडी इट समवेयर सम अदर टाइम, बट येस सिंपली हमेशा से क्या है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स के बीच में थोड़ा सा क्या होती रहती है, टसल होते रहते हैं। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई थी, बट क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने क्या करा था, एंगलिकज़म जो था उसे एक नया रिलीजन के तौर पे इस्टेब्लिश किया था। ओके, एंगलिकज़म होता क्या है, दैट इज़ इंग्लैंड्स ओन चर्च। इससे क्या हुआ था कि रिलीजियस सेटलमेंट स्टेबिलिटी जो थी हो गई थी। ये 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दैट इंग्लैंड इट वाज वेरी इट हैज़ मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द रेलम ऑफ नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारी डिस्कवरीज़ हो रही हैं, कई सारे कॉन्टिनेंट्स जो है उनको खोजा जा रहा है, चाहे वो जोग्राफिकल एरिया में हो या एस्ट्रोनॉमिकल एरिया में हो, डिस्कवरीज़ यहाँ पे बहुत सारी हो रही हैं। ओके,
and the Renaissance that had started earlier, it was very felt strongly in England now. ठीक है, ये Elizabethan period की time है. तो in the writing of literature of Elizabethan time, we will find this spirit of Renaissance in each and every writer. Okay, and Renaissance just brought ancient Greek and Roman wisdom to England. Okay, Ramus की हम बात करें, he reached England. John Colet, who taught humanism and other ideals of Renaissance. Okay, तो social life England की उस time पे कैसी हो गई थी? It was it marked with a very strong national spirit, humanism, liberal religious views, scientific curiosities, social content, okay, intellectual progress, and the most important thing, unlimited enthusiasm. Okay, so this was the background of England at that time. और यहीं पे हम क्या देखते हैं, that we will see the various literary trends at that time. Okay, लिटरेरी ट्रेंड्स में हम क्या देखते हैं, या लिटरेचर में हम क्या देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कई सारी चीज़ों का. Elizabethan England at that time, it saw a very remarkable flourishing of arts and literature. Renaissance humanism, Protestant zeal, geographical and scientific discoveries, all these things, they have contributed to this upsurge of creative power. ऐसा हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड क्रिएटिविटी के तौर पे बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन पीरियड रहा था. ड्रामा हम देखें तो इट वॉज द प्रोमिनेंट जॉनरा इन एलिजाबेथन एज, एंड विलियम शेक्सपियर, ही वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले राइट ऑफ दिस टाइम. Okay, so Shakespeare production, how productive he was. You can say that he has created a wide variety of comedies, tragedy, tragic comedy. This was a kind of new genre which was created by Shakespeare, which was employed by Shakespeare, you can say, and obviously sonnets. Okay, कई बार तो क्या होता है कि this age, it is also sometime named after him as the age of Shakespeare. Okay, and इस एज में हमने क्या देखा है, पहली इंग्लिश कॉमेडी, the introduction of first English comedy, which was Ralph Roister. Okay, it was written by Nicholas Udall. Okay, we have seen the introduction of first comedy. Can you imagine it? Okay, and then the first English tragedy, Gorboduc. Okay, it was written by Thomas Norton and Tom Sackville. Okay, so and Elizabethan age, it also witnessed the establishment of the theatre in 1576. Okay, it was the earliest theatre ever built. तो आप देख सकते हैं कि it was quite a golden period. यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हो रहे हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हो रही हैं, एंड एट द सेम टाइम लिटरेचर एंड आर्ट्स में भी कई सारी चीज़ें, कई सारे नए डिस्कवरीज हम देखने को मिलते हैं, नए तरीके के फॉर्म्स में चीज़ें लिखने को, चीज़ें जो है वो दिखाई देती है. यस, इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगेट टू मेंशन हियर, द डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा. देखो स्पेनिश अर्माडा था क्या, इट वाज बेसिकली a vessel, a naval vessel by फ्रांस. ओके, तो यहाँ पे क्या था, ये जो था एक तरीके की फ्लीट थी विच वॉज असेंबल्ड, सॉरी इट वॉज ए वेट, yes, so Spanish Armada, it was a fleet which was assembled and dispatched by King Philip II of Spain. Okay, and it was there in attempt to invade England in 1588. लेकिन King Philip का जो attempt था, it was proved unsuccessful. Okay, और इससे क्या हुआ था, इंग्लैंड की जो रेपुटेशन है एज अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, इट वॉज इंश्राइंड इन द हिस्ट्री आफ्टर इट डिफीटेड द स्पेनिश आर्माडा इन 1588. ओके, अब हम लिटरेरी ट्रेंड्स की यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि लिटरेरी ट्रेंड्स इस टाइम के क्या क्या रहे थे. तो लिटरेरी ट्रेंड्स में हम देखते हैं कि एलिजाबेथन लिरिक्स जो थे, एलिजाबेथन सोनेट्स जो थे, ये जो दो प्राइम ट्रेंड्स थे एट दिस टाइम. लिरिकल पोइट्री, सी फर्स्ट ड्रामा वॉज वेरी फेमस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट genre or dominant genre of Elizabethan age.
After that there was Elizabethan lyric. So lyric poetry, it was the second most important literary genre in the Elizabethan period. Okay, and then there were sonnets, Elizabethan sonnets. ओके, सोनेट्स के भी देखो कई सारे टाइप्स हैं. लेट मी सी दिस, लेट मी ओपन द सेकंड स्लाइड. ओके, सोनेट्स के भी कई सारे टाइप हैं. ओके, पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट सोनेट एग्जैक्टली इज़. सोनेट होती क्या है? इट इज़ अ लिरिक पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. ओके, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है एंड इट हैज़ अ राइम स्कीम. इट हैज़ अ वेरी इंट्रिकेट काइंड ऑफ राइम स्कीम. ओके, so just keep this thing in your mind कि sonnet always will have 14 lines, and if we are talking about Elizabethan sonnet, it will be written in iambic pentameter. Okay, so yes, so English जब हम prosody पढ़ते हैं तो okay, so lemp is basically in a structure, you know, when in a line, when the unstressed syllable it is followed by a stressed syllables. ओके, अब देखो हम सोनेट्स की बात कर रहे थे. सोनेट्स के भी 2-3 टाइप्स हैं. ओके, एलिज़ाबेथन पीरियड में जो सोनेट्स थे, पहला जो टाइप था दैट वाज अ इटालियन सोनेट. ठीक है, इटालियन सोनेट की क्या खासियत होती है? दैट इट हैज़ एन ऑक्टेव फॉलोड बाय अ सब्सेट. ओके, ऑक्टेव जो होती हैं 8 लाइन्स होती हैं एंड फॉलोड बाय अ सेट ऑफ 3 लाइन्स. ओके, सो देर आर 8 लाइन्स. उनकी जो राइम स्कीम है दैट इज़ ABBA, CDE, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. CDC की तरह हो सकता है. और सेकंड जो टाइप की सोनेट थी दैट वाज शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं एंड इट एंड्स इन अ राइमिंग कपलेट. ओके, तो शेक्सपियरियन जो सोनेट है ये हम इसे कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली क्या है? इंग्लिश सोनेट है. ओके, तो कपलेट जो है इसका एक बड़ा डिफाइनिंग सा फीचर है. ओके, तो राइम स्कीम की हम इसकी बात करें तो इट इज़ ABAB, देन दिस इज़ BCBC and sorry, it's not BCBC, ABAB, then there is ABAB, CD, EF and GG. ओके, सो ये जो राइमिंग कपलेट लास्ट में आप सोनेट में देखते हैं, सो दिस राइमिंग कपलेट इट इज़ वेरी यू कैन से वेरी डिफाइनिंग फीचर. ओके, एंड कुछ जो पोएट्स थे, यू नो, दे फॉलो द पैटर्न ऑफ स्पेंसर. ओके, ये जो 2 फॉर्म हमने डिस्कस करे, इसके बाद इसके अलावा एक तीसरा वेरिएंट भी है दैट इज़ स्पेंसरियन सोनेट. ओके, एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर. ओके, सो ये जो सोनेट फॉर्म है ये कैसे कंपोज करी जाती है कि देर आर 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट एंड आयम्बिक पेंटामीटर. ओके, तो इसकी जो आउटग्रोथ है सेंसर पैटर्न की कैसे होती है, हम ये जो एग्जांपल्स हैं वो कहाँ देखते हैं? फेरी क्वीन, जो बहुत फेमस इनका प्रोडक्शन है, उसमें हम देखते हैं. ठीक है, तो राइमिंग स्कीम इनकी क्या होती है स्पेंसरियन सोनेट की? ABAB, BCBC, CD एंड EE. ऑलराइट, सो these were the various sonnet types. तो आप जो हैं क्या करेंगे? आप इसके नोट्स बनाएंगे एंड जो चीज़ें छूट गई हैं दैट यू हैव टू फाइंड. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर. और जो सोनेट्स हम पढ़ने वाले हैं, कुछ सोनेट्स की डिटेल्स हम पढ़ लेंगे. ओके, जस्ट ट्राई टू मेक नोट्स and keep reading, keep studying. Take care, students.